What's going on, guys? Welcome to Gamer Point. My name is Amog and I'm recording this very special video for you all today. And this is the first time that I'm interacting live on my YouTube channel, and today I'm going to a very special event. I'm going to meet the whole GTS team at YouTube Space Goregaon, Mumbai at GTS Meetup Mumbai. So I'm very much excited to go, and I'm a big fan of the whole GTS team like you all guys, and I've been watching their videos since past 2 to 3 months, and I'm very much proud that I'm gonna meet them first time live because they've been a lot of motivational for me, and this is really special for me. The people I used to watch always on YouTube, I'm gonna meet them first time live. So without waiting anymore, let's get started. And I'm gonna record a lot of videos today during my journey till Goregaon, so it will be a kind of short vlog, I would say, but I'm very much excited to go and I hope to see you there also. But personally, I don't know very much about vlogging. I'm trying something like this first time on my channel, so just bear with me. So friends, I'm in the bus now. I decided to go by bus as I live in the nearby suburbs, so I thought going by bus would be faster than going by train. Now as for the event is at 3 PM at YouTube Space, and I hope I won't be late because it's already raining here. So let's see, I'll post the coverage of the event as I reach there, so stay tuned for that. So friends, I just got down from the bus at Goregaon. Now I need to find a rickshaw to go to YouTube Space. So let's see where we can find one. So guys, I just got a rickshaw. That was quick. Now I'm directly going to YouTube Space. I just can't wait to meet the GTS team. I'm pretty excited. So stay tuned for that with me. Friends, I have reached here at YouTube Space. As you can see behind me, that's the building. So I'm just hoping everything goes right because I'm coming here first time, so I don't know much about this place. So let's see what goes on. मेरे भी कैमरा था
सर एक्चुअली यही है, ऑफिस है। So guys, the GTS team is here. Now they have went to see the place and the rest of the arrangement, and we are here to do the final registration, and then we'll go directly to the place where the event will begin shortly. So stay tuned. And friends, I'm finally in here. Still many people are yet to come, so this is the place, as you can see, where the event is actually, and we all are waiting eagerly for the whole GTS team. So let's see when they comes. Welcome to Mumbai. अरे गौरव जी किधर है? जाओ भाई। हाँ ओके ग्रेट। TNS। चलेगा। चलो बैठो बैठो बैठो। रेडी? एक्शन। मैं तो एप्पल ही लूंगा, एप्पल के अलावा कुछ भी नहीं लूंगा। दोस्तों हम तकरीबन हर हफ्ते देख रहे हैं ग्रेफीन के बारे में। ग्रेफीन के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी के सामने। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। तो आज की टेक्निक शुरू करते हैं। लावा ने एक फोन लॉन्च किया है, स्पेसिफिकेशन बता के मतलब नहीं है। और देखो भाई, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि Xiaomi जो देता है ना, वो और कोई नहीं देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार अभी करते हैं ऑफिशियली। डुप्लीकेट रोड बहुत अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आके, और काफी अलग ही माहौल है ना। शायद आपसे ज्यादा एनर्जी मुझ में है, और इतनी है कि अभी निकल पड़ी है, वो ठीक से बाहर नहीं रही है। मैं आपको बताता हूँ कि बात क्या है यार। जो मीटअप हुआ, ये आई थिंक द बेस्ट मीटअप जो दिल्ली में किया, कोलकाता में किया, और फाइनली जो मुंबई में किया। और वो क्या बोलते हैं यार, आई लव यू क्या बोलते हैं मुंबई मराठी में? मी तुझ्याशी प्रेम करतो। हम तीनों करेंगे तो क्या बोलेंगे? अम्मी तुझ्यावर प्रेम करतो। चलो तो ये बात बिल्कुल सही है यार। और ये ना बिल्कुल एकदम यूनिक एक्सपीरियंस है कि आप सभी यहाँ पे हमसे मिल पा रहे हैं। और इनफैक्ट मतलब हम आए हैं बहुत ही आराम से, फ्लाइट लिया, टैक्सी ली, आ गए बड़े आराम से। लेकिन जब यहाँ पे आके देखा कि स्पेस कहाँ पे है, वो CID वाला जंगल आता है रास्ते में, एक तो हमारी रजनीकांत। उसके बाद में फाइनली राइट लेफ्ट करते हुए जब बारिश में आप सब लोग यहाँ पे आए हो, बहुत बहुत सैल्यूट आप सभी को। और YouTube स्पेस मुंबई को एक ग्रैंड सैल्यूट। ये जो चारों तरफ कमाल की चीज है। और ऐसे भी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करना। आई होप कि आपको भी काफी पसंद आएगा। हम सभी ऐसे आपस में बातें करेंगे। और यहाँ तक आना इतना इजी नहीं था, लगता है सोच के कि 1 साल भी पूरा नहीं हुआ अभी तक मेरे चैनल को, और आपको बस 1 साल ही हुआ है, आपको थोड़ा और टाइम हुआ है। लेकिन यहाँ तक आना, इट्स नॉट लाइक कि सोचा करो और आज आ गए। जो पीछे की जर्नी गई है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे। कैसे शुरू किया, कैसे हम यहाँ तक आए, और कैसे ये जो बॉन्ड बना है ना, ये शायद बहुत ही मुश्किल है बनाना, अगर फिर से कोशिश करेगा तो। बिल्कुल मैजिकल बॉन्ड है। और
कभी कभी थोड़ा हम बिजी होते हैं, बात आपसे ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन आई थिंक ये आइडिया हमारे इतना व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है जीटीएस नंबर पे। तो ये जो आइडिया था मीटअप का वो सकता है। तो GTS मीटअप का जो आइडिया था वो एक ऐसा इलेक्ट्रीफाइंग एक्सपीरियंस रहा है जब हमने किया है दिल्ली में और कोलकाता में और मुंबई में आए, तो एक और अच्छी बात है। और आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनको कंफर्मेशन ईमेल नहीं आ पाया होगा, तो हम कल एक और मीटअप कर लेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल। चलिए फिलहाल मैं बता देता हूँ, हम लोगों ने अपनी फ्लाइट टिकट्स कल की कैंसिल कर दी हैं और कल एक और मीटअप हो रहा है। तो कल एक और मीटअप उन सभी लोगों के लिए हो रहा है जो यहाँ पे किसी वजह से नहीं आ पाए। आप लोग इतनी दूर से आए हैं, इतनी बारिश में आए हैं, वही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम लोग तो यहाँ आराम से गाड़ी में ही आए थे, आप लोग जैसे भी आए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है, और उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया है सभी लोगों का। और आप सब लोगों को देख के हम लोगों का और मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, या शायद उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, या कुछ भी हेल्प मिल रही है, तो वो एक बड़ी बात है। और अभी तक मैं बता देता हूँ कि अभी तक जितने भी मीटअप हमने करे हैं, दिल्ली का मीटअप इतना ऑर्गेनाइज नहीं था, कोलकाता का मीटअप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश हमने की, लेकिन यहाँ का मीटअप इतना ऑर्गेनाइज सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब स्पेस मुंबई की तरफ से है। और यहाँ पे देवीना है, शी हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड अस बेसिकली बुक दिस वेन्यू बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड पे, और ये सारा अरेंजमेंट जो है, सारा डिजाइनिंग जो है, ये सारा यूट्यूब ने किया। और जहाँ तक चैनल की बात है, चैनल मैं बहुत समय से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, आई थिंक सबसे ज़्यादा पूरा मैं यहीं पे हूँ। तो चैनल की एज की अगर आप बात कर लें तो बहुत समय पहले मैंने चैनल शुरू किया था, और ये शायद गैजेट चैनल नहीं था, ये एक हमारे पब्लिकेशन के नाम से, टेक्निक्स मीडिया के नाम से चैनल हमने शुरू किया था, और फिर बाद में गैजेट्स यूज इसको बना दिया और हम लोगों ने गैजेट वीडियोस अपलोड किए। तो 2012 से मैंने इस चैनल पे काम करना शुरू किया है, और अभी 2016 चल रहा है, तो तकरीबन 4 साल हो गए हैं। 4 साल में जो जर्नी रही है सीखने की, वो बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारे फीडबैक मिले हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी हैं, वो भी हमने सुनी, और कुछ लोगों ने अच्छी बातें भी बताई हैं, वो भी बताई, वो भी पढ़ा है। सबको एक एक कमेंट हम लोग पढ़ते हैं, एक एक कमेंट, कोई एक कमेंट ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं पढ़ा जाए, चाहे उसको हम रिप्लाई कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन कमेंट सारे पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई करें। यहाँ आने से पहले रात के 2 से 3 बजे तक बैठ के मैंने तकरीबन 150 कमेंट्स का रिप्लाई किया था जो कि आए थे रात को, और रात को भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए थे। तो आप सब लोगों का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे। शर्मा जी से बात करते हैं, शर्मा जी से पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही है अभी तक। शर्मा जी की तरफ से भी सभी को स्वागत है जी यहाँ पे। मेरी जर्नी जो थी वो बड़ी अजीब सी थी। आवाज आ रही सबको? नहीं, थोड़ी बड़ा। थैंक यू। आप ही का प्यार है जी, हम यहाँ पे बैठे हैं, वरना हम भी जो है वो आप ही की तरह एक नॉर्मल थे जो हम और यूट्यूबर्स को देखते थे। मैं तो बैंगलोर में काम करता था, कॉर्पोरेट बिजनेस में था। नमस्कार, शर्मा जी टेक्निकल में आपका स्वागत है, और आज हम बात करने वाले हैं Redmi 3S की। फोन तो बड़ा अच्छा जैसा मैंने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस वो वाली बात है कि मेरा विश्वास था कि मुझे कुछ करना है तो मैंने वो करके दिखाया, लेकिन आज काफी लोगों को लगता है कि वो ओवर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मिलोगे मुझसे तो पता लगेगा कि किस तरह से है। जैसा बताना था आपको कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में काम करता था, मुझे कुछ लेना होता था गैजेट तो मैं देखता था कि चलो देखते हैं क्या कोई हिंदी में है जो करता है। एक टैगुरु आवाज़ था CM की, उसको देखा करते थे, लेकिन वो हफ्ते में एक बार आता था। लेकिन मुझे कुछ रोज देखना है तो मैं क्या करूँगा। एक दिन बस फेडअप हो गया और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि तुम करो, स्टार्ट करो, देखो कितना जो है वो अप्रिसिएशन मिलता है। वो बहुत अप्रिसिएशन मिला है, और आप देख लीजिए लगभग 14 महीने हुए हैं और 1,30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट है तो हमें यहाँ तक लेके आया। साथ में हमारे साथ गौरव का सपोर्ट था, गौरव ने हमको और आगे जो है वो बढ़ाया, टेक्निक दुनिया में टेक्निकल चीज़ें बताई, अच्छी से समझाने वाली। मुझे नहीं पता थी काफ़ी चीज़ें, लेकिन हम गौरव के साथ में देखो कितना जो है हम यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। ये बिल्कुल एक जीता जाता एग्जाम्पल होगा। आई थिंक अगर हम बात करते हैं यूट्यूब कम्युनिटी की, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि कोलैबोरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, अगर आप आपस में कोलैब करते हैं तो उससे अच्छा शायद कुछ भी नहीं है। और ये एक कोलैब है जो कहाँ से कहाँ चीज़ें लेके आ जाता है, तो वो आपके सामने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है।
और आई थिंक कि आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ये हमको छोड़ के नहीं भागेंगे नहीं, इनको मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तो यहाँ पे हूँ ही। तो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी और मेरी जर्नी आप सभी को पता है। आई थिंक आप अगर पहले से जुड़े हैं तो मैं इसको एज अ हॉबी कर रहा हूँ, अभी भी एज अ हॉबी कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में आधा घंटा निकालता हूँ यार मुश्किल से। और बाकी मतलब वीडियो क्रिएशन में आधा घंटा लगता है, बाकी तो बहुत टाइम लगता है। तो मतलब ये हॉबी है और आई थिंक हॉबी ही रहेगी आगे। लेकिन जो सपोर्ट मिला है आपकी तरफ से वो कभी सोचा भी नहीं था, मैं आपको बताऊँ फ्रैंकली। स्टार्टिंग के वो दिन थे जब मैं वीडियोस बनाया करता था, तो उस टाइम पे ना रोज के यूट्यूब में लास्ट ईयर अक्टूबर में वो फीचर नहीं था कि जिसमें प्रॉपर चैनल के पिछले 24 घंटे कितने व्यूज हैं वो दिखा देगा। अब वो आ गया, पहले वो था नहीं। तो उस टाइम पे मैं डेली कैलकुलेटर में गिनता था। फॉर एग्जाम्पल मेरी 10 वीडियोस हुई हैं, तो एक वीडियो पे 784 प्लस 526 प्लस 486, मतलब ऐसे करते करते 10 वीडियो पे कितने कमेंट, आज के कितने व्यूज आए, 6700। अब मैं कल वो फिगर दिमाग में याद रखूंगा और कल दोबारा गिनूंगा, ओके कितना कितना कितना, ओके अभी कितना हो गया 7800, मतलब 1120 एक्स्ट्रा आ गए एक दिन के अंदर। तो वो टाइम था स्टार्टिंग का 10-15 दिनों का। उसके बाद में धीरे धीरे वो गिनना बंद किया, धीरे धीरे बाद में सब्सक्राइबर रोज के 10 आए, फिर 5 आए, कभी 50 आए, 100 आए करते करते। और आज का वो टाइम है कि शायद वो चीज़ ध्यान में जाती है, जो दिमाग में आता है वो यही कि मतलब कैसे मैं नया क्या करूँ आपके लिए। मेरे फ़ोन में मेरा पुराना वाला फ़ोन टूट गया, वरना मेरे पास उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स की लिस्ट थी। मुझे पता होता है कि मैं कल क्या बनाऊंगा, परसों क्या बनाऊंगा, अच्छा यार ये तो खत्म हो गया, फिर और क्या बनाऊंगा आगे। तो वो चीज़ में ऐसा निकल गया और आपका सपोर्ट इतना मिलता रहता है ना कि कुछ है नहीं मेरे पास बोलने को। और ये स्पेशली जो इंडिया ट्रिप है, ये आप शायद सभी लोग जानते होंगे, सिर्फ और सिर्फ GTS की वजह से है। मुझे वापस जाके एप्पल ज्वाइन करना है, मेरे को बीच में थोड़ा सा टाइम था, मुझे लगा चलो ठीक है यहाँ पे आता हूँ और एक ग्राउंड चेक तो बनता है, आपसे आके एक बार मिलना तो डेफिनेटली बनता है। तो ये जो 2 महीने मैंने निकाले हैं, ये मुझे मतलब स्टार्टिंग में नहीं था यार, पता नहीं कि वर्थ होगा नहीं होगा। इंडिया आ गया हूँ, अभी वीडियोस तो सेम वहाँ से बन रही थी, कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता गया, अभी मेरे वापस जाने का टाइम आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि यार ये वर्थ थे। सेटल हो जाओ। क्या चीज? सेटल हो जाओ। सेटल तो मैं वहाँ रहूँ या यहाँ रहूँ, आपके स्क्रीन पे डेली आपको एक बार 7-8 मिनट के लिए आ जाया करूँगा। तो मतलब बात ऐसी है कि अभी मुझे वो वर्थ फील हो रही है कि हाँ यार मतलब ये वो चीज है। पैसा वसूल। क्या चीज? पैसा वसूल, टाइम वसूल, कुछ भी बोलो, प्यार भी वसूल, क्योंकि जितना दिया है उससे ज्यादा ही मिला है। तो ऐसे में थैंक यू यार, और कुछ बोलने को है नहीं अभी। चलिए ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं कि एक GTS मीटअप दुबई में भी होगी, और अगर दुबई में आप लोग होंगे या कोई भी बुर्ज खलीफा के 124th फ्लोर पे होगी, ऑब्जर्वेशन डेक पे। अब मेरे ख्याल से हम लोग तो अपने बारे में बता चुके हैं। आप लोग कुछ भी अगर पूछना चाहते हैं YouTube के बारे में, या फिर स्मार्टफोन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आप हमारी पर्सनल लाइफ ज़ेनफोन 3 प्राइसिंग बेकार। हम लोग की लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसीलिए हैं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए नहीं है, आप लोगों से बात करने के लिए हैं। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हैं जिसमें हम आपको हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए हैं। तो आप एक एक करके मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप तो हमें सुनते ही रहते हो, हम आपको सुनना चाहते हैं। और आप ये नहीं बोल सकते आज कि हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। हाँ, यहाँ पे सब सवालों का जवाब मिलेगा, कुछ भी सब कोई भी कुछ? कमेंट आंसर नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कार कंडीशंस अप्लाई। पूछो कि YouTube की अर्निंग कितनी होती है तो वो नहीं बता सकते, उसके अलावा हाँ, वो देखो एज पर YouTube पॉलिसीज कोई भी चीज जो हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोई भी चीज आप लोग ना पूछें। लेकिन YouTube के बारे में, वीडियोस बनाने के बारे में, कोई अगर YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं आप लोग, और उसमें इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू डोंट हैव अ बिग कैमरा, हाउ यू कैन स्टार्ट। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने आईफोन के कैमरा से स्टार्ट किया था, एंड देन आई बॉट सोनी कैमकॉर्डर जो अभी डिसकंटिन्यू हो गया है। मेरी जो जर्नी है स्टार्टिंग से कितना आई थिंक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स तक जो कुछ जून में हो गए थे। तो वो जो 10 महीने का 8 महीने का जो टाइम था, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में क्या Note 5 का फ्रंट कैमरा है, मतलब रियर भी नहीं, फ्रंट कैमरा, कोई प्रोफेशनल ऑडियो किट नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, सामने कैमरा लगा था। सुबह जब नहा रहा होता था उस टाइम सोचता था कि यार आज किस टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, तो दिमाग में 2-3 चलते थे कि अच्छा इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। फिर दिमाग में आता कि नहीं यार ये तो मेरे को पूरा नहीं आता, थोड़ा इसमें पढ़ना बाकी है, क्या लेटेस्ट हुआ है पढ़ना बाकी है, ये मेरे को पूरा आता है। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बाहर निकला, रेडी हुआ, कैमरा लगाया, बोलना स्टार्ट किया, 5 मिनट में वीडियो बनाया। जब ऑफिस जा रहा हूँ गाड़ी में तो उस टाइम एडिट कर लिया, ऑफिस जाके अपलोड कर दिया और दिन निकल गया पूरा।
उस टाइम पे Note 5 था, उसके बाद में S7 लिया तो उसका फ्रंट कैमरा, और अब भी जाके वो प्रोफेशनल कैमरा और वो माइक वाइक लेना समझ में अभी नहीं आता है। और अभी iPhone 7 लेने वाले हैं। 6S आएगा, 6S 6S। नया iPhone। ठीक है, तो आप लोग कोई भी या तरह कोई कैमरा होगा, मैं कंफर्टेबल हूँ यार, चलता है, मैं उसमें बना लूंगा। एडिटिंग हुई नहीं हुई चल जाता है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तो ऐसे में इट इज़ अ गुड टूल, लेकिन यहाँ पे वो वाली बात है कि क्या बोलते हैं उसको कि मतलब डांस फ्लोर होगा तो डांस करूँगा, डांस नहीं करूँगा। तो ऐसे में ये है कि आप अपने आप को रोको मत कि DSLR कैमरा होगा तो ही शुरू करूँगा, अच्छा लैपटॉप होगा तो ही शुरू करूँगा। आप मोबाइल फ़ोन से कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें ऐसा अपने आप को पहले वो मत सोचो कि रिव्यू यूनिट आएगा तो ही वीडियो बनाऊंगा। तो ऐसी कुछ भी लिमिटेशन मत रखो, कहीं से भी कुछ भी करो, और क्या फर्क पड़ता है एडिटिंग क्या है क्या नहीं है, कौन सा कैमरा है, और कुछ ऐसा करो जो कि डिफरेंट हो। देखो अभी करंट सिनेरियो जो है यूट्यूब चैनल्स का इंडिया में खासतौर से जो टेक्नोलॉजी के एरियाज में है, वो ऐसे है कि बहुत सारे चैनल्स बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन हो रहा है, और वो जिस भी वजह से हो रहा है उस वजह को छोड़ दो। लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं करोगे, इन द लॉन्गर रन यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड आउट डिफरेंटली। कुछ अलग करो, कुछ अपनी तरफ से सोचो जो किसी ने नहीं किया। मे बी यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ टेस्टिंग अ स्मार्टफोन जो शायद कोई भी नहीं करता है। शायद आपको शुरू में लोग कहेंगे तो पागल है, कहने दो नहीं, बट इफ़ यू आर एडिंग वैल्यू, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, देन इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। और एक चीज़ मैं अभी बता देना चाहता हूँ बिफोर वी प्रोसीड। Sudhanshu, he is our editor at Hi. Galaxy, and he has travelled from Delhi to actually help us cover the event, to help us with the photos of you guys, so that we can create a vlog later on. And he has dedicated. Normally Sudhanshu अपना Saturday Sunday मेरे को बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड के लिए होता है। लेकिन समझ लो कि अगर वो Saturday Sunday आप लोगों को दे रहे हैं हमारे साथ, तो वो मेरे ख्याल से उसके लिए बड़ी बात है। अगर मैं मेरी एडिटिंग की बात करूं तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हो तो 40-50 मिनट के होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि उसमें एडिटिंग होती नहीं थी। मैं क्या करता था, वीडियो बनाई, पहला पार्ट रिकॉर्ड किया, अपलोड हो रहा है, दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, पहला अपलोड हो रहा है, तीसरा बना रहा हूँ, दूसरा अपलोड हो रहा है। बाद में उनको यूट्यूब एडिटर पे जाके मर्ज कर दिया। शुरुआत के 1-2 महीने की बातें होंगी शायद। हाँ वही तो कह रहा हूँ, शुरू के 3 महीने की ऐसी कहानी थी, लगाया और बस बनाया और लगा दिया, मतलब देखा भी नहीं दोबारा कि गलत लगाया सही लगाया, बाद में लोगों ने ये गलती हो ये होता था। उसके बाद मैंने यूज़ किया कैमटीशा, फ्री सॉफ्टवेयर था, 30 दिन चला, फिर खराब हो गया, चलो वापस से फॉर्मेट कराओ लैपटॉप, फिर चला लिया 30 दिन, ऐसे कर करके चलाया। बाद में मेरे को वंडर शेयर ने कांटेक्ट किया कि हमको रिव्यू करवाना है। मैं कहा हाँ जी करवा लो, मेरे को दे दो 100 लाइसेंस। उन्होंने कहा ये लो जी लाइसेंस ले लो। उसके बाद से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बड़ा फ्री लगता है, ईजी है, जल्दी रहता है, ये सब बातें। और कोई सवाल? मेरे ख्याल से आप और लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं। शायद आपका जवाब मिल जाए। और वो एग्जाम नहीं हो पाया, एंड लेटर ऑन आई टोल्ड देम कि आई डिड इट एंड देयर इज अ फ्लॉ इन द नेटवर्क, सो दे अप्रिशिएटेड इट, एंड देन आफ्टर वी फिक्स दैट फ्लॉ। बट एनीवेज वो सब पुरानी बातें हैं। तो प्रोफेशनली आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग एज अ करियर, एंड लेटर ऑन यूट्यूब पे मैंने काम किया क्योंकि मुझे गैजेट्स पे कुछ करने में अच्छा लगता था। और उस टाइम पे ब्लॉगिंग अभी भी आप देखेंगे इट इज़ वेरी वेरी सैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ द ब्लॉग्स एंड द वेबसाइट्स, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। तो यूट्यूब उस टाइम पे बिल्कुल ओपन था। देयर वर नो यूट्यूब क्रिएटर्स और वेरी फ्यू इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हु वर एक्चुअली डूइंग गैजेट रिव्यूज़। तो आई स्टार्टेड दैट कि देखते क्या होता है, और फिर अब देख रहे हैं क्या हो रहा है। बताओ प्रोफेशनली क्या कुछ है? देखो मेरा तो ऐसा है कि तो भाई के रईस हैं। ये कुछ भी कचरा बोलते हैं। फ्रैंकली आपको बताऊं तो ये हॉबी भी कैसे हुआ शुरू, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही बिट्स पिलानी से अपनी ME कंप्लीट की है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ऐसा था कि आगे मेरे पास में ऑप्शन था कि यार PhD करूं या फिर MBA के लिए जाऊं, 2 ऑप्शन होते हैं नॉर्मली, और 2 ऑप्शन थे मेरे पास। लेकिन PhD लगा कि यार नैनो साइंस में इतना पढ़ा है, 5 साल तक पढ़ना पड़ेगा, सेम चीज़, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, बीच में क्विट करना पड़ गया तो कहाँ जाऊँगा, नहीं पता कुछ भी, तो PhD को ड्रॉप कर दिया। MBA का इंटरेस्ट वैसे निकल गया क्योंकि बिजनेस फैमिली से हूँ तो मुझे पता है कि कैसी दुकानदारी होती है। अब वो MBA है नहीं है मुझे नहीं फर्क पड़ता, तो दोनों ड्रॉप कर दिया। तो सोचा कि पार्ट टाइम क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो प्रोफेशनली जो मैं करता हूँ बेसिकली वो ये है कि मैं दुबई पुलिस सर्टिफाइड एक सिक्योरिटी सिस्टम्स इंजीनियर हूँ। तो जो हमारा फैमिली बिजनेस है उसी में एक सेक्शन है जिसमें हम डील करते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स से। तो उसमें CCTV कैमरास, एक्सेस कंट्रोल, बायोमेट्रिक्स, ये आइरिस स्कैनर, फिंगरप्रिंट्स वगैरह, गेट बैरियर वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, तो उन सब में हम लोग डील करते हैं।
और उसके अलावा एज सच मैं कुछ और नहीं करता हूँ, वही काम देखता हूँ। और यूट्यूब ऐसा है कि जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो मैंने नॉलेज गेन किया है मेरी आज तक की पढ़ाई में, तो उन सबको थोड़ा सा एक सिंपल फॉर्म में आपको अगर दे पाऊँ तो दैट्स ऑल। बस ये 2 ही चीज़ें मेरे साथ तो। और इधर बताएंगे फिर हमारे ए बी अभी भी बच्चे हैं, अभी भी। मैंने 9 साल कॉर्पोरेट लाइफ में काम किया है। मैंने दिल्ली में काम किया, मैं मुंबई में भी काम करता था 2008 के अंदर, तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग पता चाहता है यहाँ पे आने के बाद में, और बहुत बार आ चुका हूँ मैं। पिछले 2011 से लेके 2016 तक फरवरी जनवरी तक मैं एलवीबी में काम करता था, और उससे पहले मैंने अपना चैनल भी शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे लोगों को सपोर्ट करना बहुत अच्छा लगता था। मेरे कॉलेज के टाइम से बताऊँ तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे, उस टाइम पे क्या होता था, LG और सैमसंग के फ़ोन आते थे, रिलायंस वाले, हरी लाइट वाले, अगर आपको ध्यान होता हो। ऐसे ऑफर आते थे कि 1100 का फ़ोन 1200 का टॉक टाइम ऐसा कुछ मिलता था, और बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों को हेल्प मिलती थी, पूछते थे मुझसे बताओ, मेरा भी उनका था, हाँ मैं उनको बताता हूँ क्या है। ऐसे हमेशा से नेचर रहा है। फिर मैंने जब काम शुरू किया तो सपोर्ट में, अब बड़ी बड़ी कंपनियों के सपोर्ट सर्विसेज होती हैं बहुत सारी, उनमें काम करता था मैं। तो ऐसे ही बस गैजेट के लिए वो था कि हाँ थोड़ा सा लगाव है, अच्छा लगता है, तो वो मैंने शुरू किया। और फरवरी 2016 के अंदर मैंने जॉब छोड़ दिया था, और फुल टाइम यूट्यूबर हूँ 5-6 महीने से ज़्यादा हो गई शायद तब से। उससे पहले मैंने शुरू किया, मैं कहा चलो देखता हूँ एज ए हॉबी क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है। अच्छा रिजल्ट निकल के आया, कंपनी वाले बोलते हैं जो चैनल बंद कर दो, नौकरी से निकाल देंगे। मैं कहती नौकरी रख लो अपने पास, मैं जाना चाहिए। मेरे पास 35,000 सब्सक्राइबर थे, मैं कहा इनको थोड़ी छोड़ सकता हूँ, मैं इनके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, तो हो जाएगा मेरा काम, मैं जी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, शर्मा जी ने वो बताई नहीं है, शायद ये बाद में मुझे डांटेंगे इसके लिए, लेकिन शर्मा जी जब नौकरी छोड़ रहे थे तो इनकी कंपनी ने इन्हें ऑफर किया था कि आप सिंगापुर चले जाइए, और सिंगापुर में हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे एंड यू विल बी प्रमोटेड एज वेल, आपका पैकेज भी बढ़ जाएगा और आप वहाँ जाके रह सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ही रिजेक्टेड दैट ऑफर यूट्यूब के लिए। रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होता है सर मेरा नाम है गौरव। चलिए सर पहली बात तो शर्मा जी आप हंस के मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए मुझे इतना आता है, इतना शायद नहीं ऐसा होंगे हम लोग वीडियो बनाते हुए। शर्मा जी हंसते हैं, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हंसते हैं। आपने कोलकाता का व्लॉग देखा है सभी ने क्या? हाँ, वो बीप शर्मा हुआ जी था। कब हंसते हैं उसके अंदर, आपको कुछ समझ में शायद पता नहीं आया। बीप हुआ था, बीप। सवाल पूछिए गौरव, क्या सर सवाल? आपने एक बार बोला था कि आप टेक गुरु अंकित वेंगुर्ले को लेकर आएंगे अपने वीडियो में, तो कब आएगा वो? जी हाँ, मैंने कोशिश की थी उनसे कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो काफ़ी बिजी थे, तो नहीं हो पाया। तो आगे कभी देखेगा? बिल्कुल कोशिश करेंगे, कोशिश करते रहते हैं हम, और हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल लेकर आएंगे। या ओके। बेंगलोर वाला गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग आज के टाइम पे 2 कंपनीज मार्केट शेयर उनका सबसे ज़्यादा है, सैमसंग एंड एप्पल। बट जैसे दूसरी कंपनीज हैं जो टियर 1 में आती हैं, लाइक सोनी, HTC, LG, ये लोग को पता है कि इनकी कंपनी सेल्स लम से गुजर रही है, तो भी वो प्राइस सेंट्रिक मार्केट देख के भी गलतियाँ क्यों किए जाते हैं? देखिए ऐसा होता है कि एवरी अदर कंपनी दे कम विद फोन्स जो कि कुछ प्राइस सेंट्रिक ऑडियंस के हिसाब से होते हैं, जो सस्ते फ़ोन्स होते हैं, और साथ साथ R&D का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और कितना वो लोग अपने स्मार्टफोन डिवीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में अगर HTC एक अच्छी R&D करके एक बढ़िया फ़ोन मार्केट में नहीं लाएंगे जिसका कैमरा से लेकर बैटरी तक सब कुछ ठीक हो, तो उनको दिक्कत होगी। और साथ ही साथ प्राइसिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन की प्राइसिंग क्या होने वाली है, कई बार HTC ग्लोबल लेती है, HTC इंडिया भी नहीं लेती है। तो ऐसे में उन्हें पता है कि भाई HTC 10 उनका प्रीमियम स्मार्टफोन है, वो उसे 50,000 में बेचेंगे, चाहे वो उसे 35,000 में बेच सकते हैं तब भी। तो क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये तो हमारा प्रीमियम फ़ोन है, अगर हम 35,000 में बेचेंगे तो फिर हमारी वैल्यू गिर जाएगी। तो ऐसे में ये उनके डिसीजन की वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज R&D का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और ओवरऑल जो अच्छा फ़ोन बनाते हैं वो धीरे धीरे अच्छा फ़ोन बनाते हैं। सैमसंग, अगर आप सैमसंग का एग्जांपल लें तो S5 बिल्कुल बेकार फ़ोन था, S6 उससे और बेहतर फ़ोन था, और S7 and S7 is right now something which is the best camera smartphone. It is a costly one, but it is the best camera smartphone and it beats the current iPhone, चाहे 6s या 6 की बात करें। लेकिन it has happened with Samsung over the years. What?
देखो आई टेल यू द रीजन उल्टा हो गया है, अभी इन्होंने खुद स्विच नहीं हुए, मेरे को स्विच कर दिया इस बार। देखो अभी इनको स्विच कर दिया और फिर शर्मा जी को भी कर देंगे। शर्मा जी को तो Xiaomi पसंद है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि Xiaomi के फ़ोन तो वैसे ही बहुत वैल्यू फॉर मनी होते हैं, मतलब ज़्यादातर फ़ोन, सारे नहीं। तो ऐसे में आईफोन का एक रीज़न है। देखो आईफोन का जो यूज़र इंटरफेस है वो एक ऐसा इंटरफेस है, अगर आप उसे यूज़ करें तो यू गेट यूज्ड टू इट एंड यू गेट डिपेंडेंट ऑन। अगर आप होम बटन को दबा के रखें तो सीरी बाहर निकल के आएगी, आपसे हाथ में आएगी। मतलब वैसा मेरे साथ नहीं हुआ है, टॉकिंग वेरी टेक्निकल। कीप ऑन ट्राइंग भाई, क्या पता कब। हाँ आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता है तो वो और अच्छा रहेगा। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, अब शर्मा जी को Xiaomi पसंद है क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी देते हैं, मुझे एप्पल पसंद है क्योंकि उनका यूज़र इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। क्योंकि मैं अगर 2 साल 3 साल भी एप्पल फ़ोन यूज़ करूँ तो वो उतना हैंग नहीं होता जितना एंड्रॉयड हो जाता है। एंड आई गेट पिस्ड ऑफ फ्रॉम Samsung S7 इतने समय से मेरे पास था, टूटा, खोया, चुराया गया, वापस आया, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी मैंने उस फ़ोन के अंदर सिर्फ फेसबुक और ट्विटर के अलावा कुछ यूज़ नहीं किया। आई हैव यूज्ड इट फॉर कैमरा ऑल द टाइम, आई हैव यूज्ड इट फॉर माई ब्लॉग्स। तो मुझे उसका कैमरा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल घटिया सा टच विज UI है। तो वो घटिया है तो घटिया है, irrespective whatever they do with the camera. So वो मेरा ओपिनियन है और मुझे लगता है कि आईफोन से मुझे बेटर एक्सपीरियंस एक क्विक पोल ले लेते हैं यहाँ पे, आईफोन कितने लोगों के पास में है? एक और अभी इसमें फिल्टर करता हूँ। सब एक बार हाथ लगा दो, कौन है? 5 करो आप करो, आईफोन 2 3 4। अब ये बताओ 5 आप में से कितने में से 5 है, कितने के पास? 2। ठीक है। आपके पास कौन सा है? और 6। बस एक सक्सेस वाले हैं, बाकी ये तीनों मेरे दुश्मन है। देखो ये जो चलो आपके बैठे हैं। आप बताओ Samsung आप के में से फोन- कितने लोगों के पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS है? चल रहा है फोन अभी भी? कितने लोग अभी तक Redmi Note 3 पे MIUI 8 के अपडेट का वेट कर रहे हैं? बीटा वर्जन ले लिया। रेडमी के फोन कितने लोगों के पास, वो बताओ। क्या बात है यार। और LED भी? ये कोई रिकॉर्डिंग करके भेजनी चाहिए ना हमको। नहीं, फिलहाल यहाँ से कोई डेटा लीक नहीं होगा, किसी चाइनीज कंपनी के पास कोई डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। या ओवर देयर। हेलो सर, हाय। मेरा क्वेश्चन ये है, आप सब YouTube की बात कर रहे हो। आप पूछो, जो पूछो तो बताएंगे। इनकम के अलावा कुछ सब भी कुछ। पूछो आप। वो तो मैंने आप देखो इनकम के बारे में जो भी जानना चाहता है जान भी लोगे तो अलग उदास से। हो जाओगे। नहीं, अलग से आपके जो चैनल हो तो मैं देखता ही रहता हूँ, आप सब रिव्यू करते हैं इसके अंदर। मेरा क्वेश्चन ये है, जब आप यूट्यूब की बात करो, मेरा जो एक क्वेश्चन ये है कि फेसबुक पे जो पेज है उसके बारे में मुझे है कि मैं हाउ टू क्रिएट पेज करूँ। हालांकि अभी आपको फेसबुक पेज से अर्निंग चाहिए? फेसबुक पेज पे मेरे को नया एक मेरे दिमाग में, हालांकि आपने एक रिव्यू किया था कि Xiaomi का 20,000 mAh का पावर बैंक मंगवाया था। हाँ। और कंपनी ने फेक भेजा था। हाँ। तो हालांकि अभी नई कंपनी आ रही है, Mizu, Coolpad, MI, तो अभी आप प्रोडक्ट तो हम ले लेते हैं लेकिन उसकी सर्विस नहीं मिलती। कस्टमर जाके बोलता है ये 3 महीने ये वगैरह, तो ये कंपनी कस्टमर जाते हैं उसके साथ गाली गलौज होती है। ये सब मैंने देखा है और होता है, अपने साथ भी होता है। तो सही है। ये और हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्का गैजेट या ऐप डेली ऐसे भी करवाते हैं। तो मैंने मेरे कई सारे फ्रेंड लोग हैं, उसने करवाए थे, तो वहाँ पे बोला था ये नहीं चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट है। तो उसके ऊपर जो उसका तो उन लोग जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर मुझे ब्लॉग लिखना है कि आप इसको जाके कैसे लड़े वहाँ पे। एक फेसबुक ग्रुप या एक फेसबुक पेज आप चाहते हैं सपोर्ट के लिए बेसिकली। हाँ, इस टाइप पे। तो आप थोड़े उसके ऊपर थोड़ा टिप दीजिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जब Xiaomi का फोन लिया हाँ। या कोई भी एक XYZ डिवाइस लिया, बेसिकली आपको मिल गया कि 12 महीने की वारंटी है, कुछ भी है। अब यहाँ पे कंपनी के हाथ में पावर होती है कि आपको क्या ये कहा है कि आपका फोन 2 दिन में ठीक कर दे देंगे वापस, ये तो कभी नहीं कहा। अब ऐसे में वो 2 दिन लगाए, 2 हफ्ते के 2 महीने, वो मालिक है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये फैक्ट बात है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं शर्मा जी से ले रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन। शर्मा जी कई बार इस बात को कहते हैं और ये बहुत ही सीरियस, ये बात सीरियस है, आप लेकिन लोगों को अभी समझना होगा। हमारे हाथ में इस मामले में नहीं है शायद इतना कुछ मेरे ख्याल से। देखिए आप लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जो भी कंपनी सस्ते में आपको फ़ोन दे देती हैं, ये फ़ोन इतने सस्ते होते नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को मार्केट शेयर चाहिए। क्योंकि इंडिया में उन लोगों का नाम उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा सैमसंग का या एप्पल का है, तो वो लोग ये सब करते हैं। अब ऐसे में वो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आप चाहते हैं कि हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कैमरा में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बैटरी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो,
तो ऐसे में आफ्टर सेल सपोर्ट जो है वो उस पर कम ध्यान देते हैं, फिर वो प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और चाइना में आप जाएंगे तो वो फ़ोन बेचते हैं, कोई पूछता भी नहीं है, अगर ख़राब हो गया तो फ़ोन फेंक देते हैं लोग, या फिर कहीं बाहर से जाकर ठीक करा लेते हैं। वो जाके किसी फोरम पे नहीं लिखते कि ये वाला फ़ोन जो है ख़राब हो गया और कंपनी रिपेयर। आपको अगर मैं एक सीक्रेट बताऊं तो LE1S जो था फोन, उसको लाइको ने नेगेटिव प्रॉफिट से बेचा इंडिया में। मतलब फोन पड़ रहा है फॉर एग्जांपल $200 का, उसको वो बेच रहे हैं $180 का। $30 का पर यूनिट उन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट लिया जस्ट टू गेट दैट मार्केट शेयर। देखो ये सब भी वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप पे, ये उनकी नीड है कि उनको मार्केट शेयर चाहिए और आपकी नीड है कि आपको बेस्ट फ़ोन चाहिए। अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ वो भी कर रहे हैं कॉस्ट में, और आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप वो फ़ोन ले रहे हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग रखिए कि Xiaomi के फ़ोन में उतनी अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी जितनी सैमसंग में मिलेगी। सैमसंग में जब आप फ़ोन लेंगे तो फ़ोन का भी पैसा देंगे, बैनर जो लगाया है उसका भी पैसा देंगे, जो सेलिब्रिटी बुलाया उसका भी पैसा देंगे, और फिर जो भी एडवर्टीजमेंट किया उन सब चीज़ों का भी मार्केटिंग का पैसा देंगे। वो ट्रक वाले के टायर से लेकर उसकी कोक की बोतल का भी चार्ज देंगे आप। बिल्कुल सही बात है। 2 साल पहले तक की बात है, मैं सोनी एरिक्सन यूज़ करता जब तक वो दोनों साथ में थे, और मैंने सोनी एरिक्सन यूज़ किया हमेशा, मेरे को अच्छा लगता था म्यूज़िक वगैरह के लिए, और मैं उसकी बैटरी को और ईयरफोन को 11 महीने होते ही चेंज करवाता था, क्योंकि मुझे पता है वो चेंज करके दे देंगे। ईयरफोन को थोड़ा सा खींच दिया, सब खराब हो गया, अच्छा नया ले लो, सब नया दे दिया। ये कैमरा में जा रहा है मेरे अभी। क्या हो गया? सर्विस मिलती है, बैटरी की सर्विस मिलती है, उसकी मिलती है, तो ले लेते थे वहाँ से। उसके बाद जब सैमसंग पे स्विच किया तो वहाँ पे चलो 1 साल के बाद हो गया, प्रॉब्लम आ गई, स्क्रीन खराब हो गई, स्क्रीन ठीक कर दी, 3 दिन में ठीक हो गई, पैसा भी ले लिया, ठीक भी हो गया। लेकिन उसके बाद जब एकदम से MI3 देखा, MI3 जो है वो फ़ोन लाइफ चेंजिंग फ़ोन है मेरे, इसका बताया मैंने काफ़ी बार। तो उसको देखा तो पहली बार देखा कि फुल HD स्क्रीन किसको कहते हैं। नॉर्मल स्क्रीन से ऐसा लगता है कि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन नहीं ऐसी।